In innovation in Indian education, when I talk about this particular line, that means I want to reform the system where the things are not so useful for the students. And as far as the 21st century is concerned, we are finding that there is a great difference comes up in our market requirement and our education system. There is a big gap between the employer and the educators. And we are finding that the government has done a lot of programs, but after all we are unable to fulfill that gap. And I want that through this program, most of the organizations, teachers get proper training, as well as they are able to frame their mind in a better way that how to execute their ideas that will cope up with the requirement of the markets. And it would be very important for us to upgrade ourselves and to make the system better. मैं आज आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और मैं आपको कहूँगा कि जो भी टीचर हैं या फिर जो टीचर बनना चाहते हैं या फिर कोई स्टूडेंट्स के तर्ज पे पढ़ाई कर रहे हैं, there are a requirement of lot of changes at present time. The kind of system which we are running, that will definitely make us good for nothing. Because this is my own perception, not for one city, not for one college. I have been through lot of cities, I have been through lot of colleges, and I found that the kind of system, the kind of education pedagogy what we are having right now, that will not make us competent enough for the shape of the success. So in this, I would like to share some great thing with you, and this is my request to you all, that try to find out each and everything in my presentation which has the impact not only in your life but the life of others also. And as far as my experience concerned, I have found the major problem is in the teachers. The major problem is in the system. And through that, in this campaign, first of all, I would like to make the informations in the mindset of the teachers. I want that we have to adopt the kind of sensibility and ability in ourselves so that we will be able to make ourselves competent enough for the shape of 21st century. So, इसमें मैं सबसे पहले आपको कुछ वीडियो से स्टार्ट करूंगा अपना प्रेजेंटेशन, और उसके बाद मैं आपको वन बाय वन अपनी टॉपिक्स इलैबोरेट करूंगा जिसकी बहुत 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 ज्यादा जरूरत है टीचर्स के अंदर भी, स्टूडेंट्स के अंदर भी, कॉलेज को भी सोचने की जरूरत है, और ना सिर्फ कॉलेज, यूजीसी को भी सोचने की जरूरत है, नैक को भी सोचने की जरूरत है। ये पूरा ढांचा जो बना हुआ है उसका 1% फॉलो ठीक से नहीं हो रहा है, और जब मैं इस पर्सपेक्टिव पे यहाँ पे बोलता हूँ, then I am not addressing the Jaunpur city, I am addressing the whole India. We are having the major problem and we are unable to provide the kind of product which are required in international market and in national market. So मैं अपनी पूरे प्रेजेंटेशन में आप लोगों को वो सारी चीजों के बारे में बताऊंगा जिसकी आज बहुत रिक्वायरमेंट है, और अगर आपके पास पेन और पेपर होगा तो ज्यादातर चीजों को नोट कर लेंगे, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे मैं जो आज आपको बता के जा रहा हूँ, आने वाले समय में हिंदुस्तान की शिक्षा वैसे होने वाली है, 2 साल के अंदर आपको वो डिफरेंस दिखेगा और आपको लगेगा कि what all the thing I have spoken today from this month that will be in a practical in coming days. So let me tell you something about positivity and the 2 motivational videos I would like to share with you, and after that I will start my lecture. How many of you are able to understand English? Alright, I try to speak more Hindi along with the English too. Okay, so let me share this story with you, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जौनपुर में जब इस तरीके का प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला था, there are a different kind of people having a different kind of mentality, and they have just told me a lot of things. मैंने सबसे पहला प्रोग्राम टीडी कॉलेज में किया था, वहाँ के प्रोफेशनल सेकेंडरी डेवलपमेंट प्रोग्राम सबसे पहला मैं वहाँ से अपने प्रोग्राम को इनिशिएट किया था, उसके बाद में काफी कॉलेजेस में प्रोग्राम किया। और उसके पहले जौनपुर में आने के बाद, चूंकि आई एम बेसिकली फ्रॉम जौनपुर बट राइट नाउ आई हैव बीन वर्किंग विद 54 नेशन, 54 देशों के साथ में काम कर रहा हूँ। अभी मैं अपने प्रेजेंटेशन में आपको उन लोगों को भी दिखाऊंगा जो मेरे लिए काम करते हैं 54 देशों से। और जैसा कि सर ने बताया, आई एम वर्किंग एज एन ऑनलाइन ग्लोबल इंग्लिश ट्रेनर, आई यूज्ड टू बी माय क्लासेस एट इंटरनेशनल फोरम आल्सो। सो मैं सबसे पहले जौनपुर में आने के बाद 40 से 50 रिटायर्ड प्रोफेसर से मिला,
जिसमें से कुछ पीडी कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल वगैरह भी थे और भी लोग थे। और फिर उसके बाद मैं जो वर्किंग टाइम के टीचर और प्रोफेसर्स हैं मैंने उनसे मुलाकात की, एंड देन आफ्टर आई हैव मेड द कंक्लूजन दैट हाउ वी विल बी एबल टू अप्रोच इन अ बेटर वे। हम लोग क्या, जब भी कोई नई चीज होती है तो हम उसको सस्पेंशन के साथ देखते हैं, ये हो नहीं पाएगा। इट वुड बी वेरी इजी टू से बट इट्स वेरी हार्ड टू इंप्लीमेंट द थिंग्स। ये प्रॉब्लम हमारे साथ होती है। तो मैं भी जब इनिशिएट करने जा रहा था तो किसी प्रोफेसर ने मुझे कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि बलिदान देने जा रहे हैं हम, नथिंग विल बी चेंज इन जौनपुर सिटी। सो आवाज पीछे तक आ रही है? ओके। सो मैंने फिर उसके बाद क्या किया कि आई एम फोकस्ड ऑन माई ओन बेस कि मुझे क्या करना है, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड बाय अदर पर्सन, दैट मीन्स यू आर नॉट बिलीविंग इन योरसेल्फ। लेट द पीपल स्पीक व्हाटएवर दे वांट टू स्पीक। The ultimate thing is that whatever you are doing, you will be able to achieve towards the future profit. So, मुझे बताया गया, कहा गया कि you are going to, if you want to make a change in Jodhpur city, then first of all you have to make yourself ready for the sacrifice. फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि change will not come because entire system is rust. Some people have told me that go to Purvanchal University, there you will find that what kind of system is going on. I went to Purvanchal University, I met almost every lecturer over there. And then some people have told me that it would be better that you have to go for schooling also, and I have visited a lot of government schools. So overall here I would like to say कि आप अकेले चेंज नहीं कर सकते, और मैं आपको जो फर्स्ट वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, I am saying to you that don't follow what others say, follow what you determine to do. लोग क्या कहते हैं उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, फॉलो वो करिए जो आपने करने को सोचा, and that will change the mindset of the people as well as the whole world also. So this is a video which I would like to run. जो जिसका नाम था यादव, और ये आपके 1979 की बात है। ये व्यक्ति एक मॉरिशस आइलैंड था जो हमारे इंडिया में ही पड़ता है, वहां पे पहले आइलैंड हुआ करता था, बाद में वो क्या हुआ, एक बंजर जमीन बन गई, पूरा रेगिस्तान बन गया। तो ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में उसको हरा भरा जंगल की तरह देखा था, उसका इमेजिनेशन था कि ये जो पूरा रेगिस्तान है, I have to make it again as a green forest. उसके बाद इस व्यक्ति ने क्या किया कि डिटरमिनेशन किया that I have to do something for that barren desert and I want to make it again as a forest. तो क्या करता था, डेली अपना बैग लेके एक छोटा सा थैला लेता था और उस रेगिस्तान की तरफ जाता था। ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए, तो एक दिन पता चला, सबके अंदर उत्सुकता होती थी कि ये डेली बैग लेके कहाँ जाता है। तो एक दिन पता चला कि वो अपने बैग में प्रत्येक दिन एक पौधा लेके जाता, और 37 साल तक लगातार 37 ईयर कॉन्टिन्यूअसली उसने प्रत्येक दिन एक पौधा बोया, और उसके बाद वो पूरा घना 1365 एकड़ का पूरा जंगल बन गया। और उसके बाद वहां पे जंगली जानवर, वहां पे तमाम प्रकार की वनस्पति, और वहां पे हर प्रकार की चीजें अवेलेबल हो गई, ग्रीनरी अवेलेबल हो गई जो कि एक जंगल में हुआ करती। सो आई वांट टू से वन थिंग वेरी क्लियरली बाय दिस, इफ समवन सेज एक अकेला आदमी 37 साल तक प्रत्येक दिन एक वृक्ष लगाते हुए कंसिस्टेंटली एक जब रेगिस्तान को जंगल में कन्वर्ट कर सकता है, तो एक अकेला टीचर क्यों नहीं पूरे समाज की मेंटेलिटी को बदल सकता है। एंड आई वांट टू से नेवर गो विद अ
इससे हमें ये पता चलता है कि अपनी लाइफ में अगर मैं कहता हूँ सिस्टम बदलेगा तो लोग कहते हैं सिस्टम ऊपर से लेके नीचे तक गड़बड़। मैं भी आ रहा था तो मैं डिस्कशन कर रहा था कि नैक की एजुकेशन प्रणाली इतनी बढ़िया है, उसके बावजूद यूजीसी ने जब 1994 में नैक को ऑर्गेनाइज किया सितंबर 1994 में, तो उसके बाद नैक के जो कंसर्न थे जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, कोई भी कॉलेज उसको फॉलो नहीं कर रहा। दिस इज आल्सो काइंड ऑफ करप्शन। वी आर नॉट गिविंग आवर बेस्ट व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सजेस्टेड, वी आर नॉट गिविंग आवर बेस्ट व्हाट द यूजीसी हैज सजेस्टेड, एंड वी आर फॉलोइंग द थिंग इन अ ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म व्हिच हैव बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम। सो मुझे कहा गया सिस्टम कैसे चेंज करेंगे। मैं सीधा बताता हूं, आप में से 10 टीचर अगर अपने आप को अच्छे से जॉब करके खड़े हो जाए, we will definitely able to change the system, because teachers are the leader of society. Teachers are not only the leader of a classroom, they are the leader of the society, and if we make up ourselves as the demand of the market, we will be able to make a big change. Now it would be very important ना, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम हिंदी का प्रयोग करूं और जिंदगी भर इसी बैकग्राउंड के साथ नहीं रहना है। इंप्रूव योरसेल्फ, ओके। अगर जिंदगी में बड़े करने हैं ना, इंग्लिश हमारी मजबूरी है, प्यार मुझे भी हिंदी से है, लेकिन बिना इंग्लिश के आप अपने देश में कई कोने में काम नहीं कर सकते। बिना इंग्लिश के कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। सो इसलिए ज्यादा जरूरी है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की जब बात हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उन्हें ग्राउंड लेवल पे आप लोगों को भी सुनना चाहिए और आप लोगों को भी जरूरी है आगे बढ़ना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए भी और आप लोगों को भी कहूंगा बाइलिंगुअल बनिए। ये बहुत जरूरी है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, कि आप लोग, क्योंकि जितने भी बड़े आप जब पीएचडी करोगे आपके रिसर्च पेपर वगैरह सब आपको इंग्लिश में ही सबमिट करने होते हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है आप लोग उसके लिए आगे बढ़िए। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ टू स्पीक मोर इन हिंदी। मैं हिंदी इंग्लिश बराबर बोलूंगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत अगर होती है तो फिर से आप बोल दीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा, ओके। तो पहली टॉपिक में मैंने जो आपको बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि हम लोग का इंटेलिजेंस करने से बढ़ता है, ठीक है। और देखिए इंटेलिजेंस भी निगेटिव और पॉजिटिव होता है। अगर हमने कोई चीज की, ठीक है, करने के बाद अगर वो चीज नहीं हुई, हम फेल हो गए, तो हमारे इंटेलिजेंस में क्या चला जाता है, हम नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है, हमने अपने दिमाग में धारणा बना ली उसको ना कर पाने की वजह से कि हम उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसी चीज को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करोगे, वही निगेटिव चीज आपके दिमाग से रिमूव हो जाएगी। एक बार अगर आप उसको कर लोगे तो आपको लगेगा कि मैं उसको बड़े आराम से कर सकता हूं। और ये चीज मेरे ख्याल से आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए। इंटेलिजेंस चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वो हमारे फेल्योर और हमारे पास होने पे निर्भर करता है। हम कोई चीज कर ले जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं कर पाएंगे तो अनुभव मिलेगा। दोनों में केवल में लॉस नहीं है। जब हम रिसर्च स्किल की बात करते हैं, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मेरे ख्याल से जो व्यक्ति एक बार पीएचडी कर लेता है उसके अंदर रिसर्च स्किल होती है। हम विद्वानों की बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूं इस दुनिया में कौन विद्वान है? 11 करोड़ 30 लाख किताबें इस दुनिया में हैं। कितने ऐसे टीचर हैं जो 11 करोड़ 30 लाख किताबें पढ़ सकते हैं? हम अपनी एक जिंदगी में 200 से 300 किताबें पढ़ते हैं, तो हम विद्वान हो जाते हैं। We consider ourselves that we are the scholar after reading 100 to 200 books in 11 करोड़ 30 lakhs। जिंदगी का सिंपल सा फॉर्मूला है, आप लोग याद रखिएगा। What I want to do in my life and how to use it, that's it। मैं अपनी जिंदगी में करना क्या चाहता हूँ, उसका मैं इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, ये 2 चीजें हैं। आप लोग बता दीजिए अपनी पूरी लाइफ में आप टीचर बनना चाहते हैं, मैं करना क्या चाहता हूँ, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे कर सके, यही आपके लिए सक्सेस है और यही सब कुछ है। और इसी को हम कहते हैं एजुकेशन। उससे बढ़ के नहीं होता। और आप जो चाहते हैं मैं अपनी दुनिया का ज्ञान ले लूं, इट इज नॉट पॉसिबल इन वन लाइफ। यू मे टेक बट अ पार्ट ऑफ इट, नॉट होल नॉलेज। ये ज्यादा जरूरी है। इस अहंकार से बाहर आइए कि हमें 11 करोड़ 30 लाख लोग पढ़ सकते हैं। इस अहंकार से बाहर आइए कि हमें सब कुछ आता है। आपको उतना आता है जितना आपको पढ़ाना है। आना वो चाहिए जो आगे बढ़ाने के लिए।
इसलिए मैं कहना चाहूंगा विनम्रता के साथ, मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ, मैं आप लोगों को भी कहूंगा टीचर अच्छा टीचर वही है जो सरल है, सहज है, सीखने के लिए तत्पर है। और यही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो हमें एक विनम्र अध्यापक के तौर पे चीजों को सरलता के साथ ग्रहण करना चाहिए। यही गुरु का सबसे बड़ा गुण है। और मैं ये कहूंगा इन चीजों को हम अपने दिमाग में रखें। मोटिवेशन स्किल, कभी कभी हमारे यहाँ के बच्चे टूट जाते हैं, मैं नहीं कर सकता, पथभ्रष्ट हो जाते हैं। कितना भी घूमने टहलने वाला लड़का क्यों ना हो, कितनी भी शरारतें क्यों ना करता हो, याद रखिएगा एक शब्द उसकी जिंदगी बदल सकता है। कभी किसी लड़के को ये मत कहिए कि तुम बेकार हो, तुम कमजोर हो, तुम नहीं कर सकते। उसको मोटिवेट कीजिए, उसको रास्ते दिखाइए। शायद वो जितना अच्छा कर सकता है उतना रेगुलर पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं कर सकता। सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उनको आगे बढ़ाना है। दिस विल बी इंपॉर्टेंट हैबिट्स की ग्रामर। और इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल, आज जैसे मैंने बताया हर चीज की जरूरत है। अगर हम उसको नहीं करेंगे इट विल बी वेरी हार्ड फॉर अस टू सर्वाइव। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये आने वाले 10 और 15 सालों में कॉलेज और यूनिवर्सिटी होंगी कैसी। आने वाले 10-15 सालों में आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया की होंगी कैसी, क्या चाहती हैं, क्या चीजें होंगी। तो मैं यहाँ पे आपको साफ साफ बता दूं, टेक्नोलॉजी इज फोर्सिंग अस, टेक्नोलॉजी फोर्सिंग हायर एजुकेशन टू लुक मोर एट आउटकम्स एंड टीचिंग कॉम्पिटेंसीज रेदर देन फोकसिंग ऑन सीट टाइम। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे ऊपर दबाव बनाते चली जा रही है कि हमें आउटकम्स के ऊपर ध्यान देना होगा। डिग्री लेके निकला है नहीं, क्या सीख के निकला है इस पे ध्यान देना होगा। दैट वुड बी द इंपॉर्टेंट थिंग्स। और ये चीजें आउटकम्स का बहुत ही ज्यादा बोलबाला आने वाले समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम पे होने वाला है। और मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, 2 दिन पहले मैंने एक जगह लेक्चर किया था, मैंने बताया था एक पढ़ाने का शैली को मैं अभी बताऊंगा। शायद आपको पता नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई प्रणाली इसी बजट में पास करने की कोशिश में है कि अब ग्रेजुएशन करने वाले बच्चे दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे भी। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में आने वाला है। इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य यह होगा कि बीएड में जो 6 महीने की ट्रेनिंग लेता है वो कितना हल्का हो जाएगा जब बच्चा 3 साल तक लगातार पढ़ा के फिर आएगा। बदलाव हुआ, कसरत है। इसलिए कहता हूं चेंज बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट कब क्या अनाउंस कर दे, क्योंकि उसके पास सोल्यूशन नहीं है हाउ टू मेक द स्टूडेंट्स केपेबल इनफ फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। सो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेक द चेंज इन आवर माइंड आल्सो। हमें अपने दिमाग में भी वो चीज करना होगा व्हाट गवर्नमेंट वांट टू मेक द चेंज, और उससे बेहतर करना होगा। ऐसी मेरी कामना है। इसलिए मैं जौनपुर में कहां बैठे हैं, हम रूरल बैकग्राउंड से हैं, कहां से ये इशू नहीं है, हम करना क्या चाहते हैं वो बड़ा इशू है। टीचर में कमर खिलता है, हर बड़ा व्यक्ति छोटी जगह से ही बड़ा बनता है। एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू से, जितना हम इसको नेगेटिव लेते हैं उतना हम इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लें। इतनी छोटी जगह पे बहुत बड़ा करेंगे ना तो इतिहास बनेगा, बड़ी जगह में तो बड़े सभी लोग कर लेते हैं। So it would be very important for us that we have to initiate from this ground. जहाँ पे हम बैठे हैं उसी जगह से मुकाबला करें ताकि वो पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके। और इसके साथ साथ हॉलिस्टिक अप्रोच काफी, जैसे मैंने बताया, आने वाले समय में मार्केट और ज्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है और ज्यादा कॉम्पिटिशन आने वाला है। और इसके साथ साथ बदलाव, कॉलेजेस हमारे अगर आउटकम नहीं दे पाएंगे तो ऐसे डिग्री कॉलेजेस भी बंद हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे AICTE, नाम तो सुना होगा आपने, जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए वर्कआउट करता है। AICTE ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म है। AICTE ने 240 इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया। Why? Because they are unable to perform in the manner which are required. मैं कहता हूं आने वाले समय में एजुकेशन में बहुत से हार्ड फैसले होने वाले हैं। So it will be very important for us that we have to check each and everything what is happening in the market and how we will be able to make a change in ourselves. अब आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि well fed mind versus well formed mind, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है। और मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा, हर स्टूडेंट्स, हर टीचर को, कि वेल फॉर्म माइंड बनाइए। वेल फील्ड माइंड से बहुत कुछ होने वाला नहीं है। और दुर्भाग्य एजुकेशन सिस्टम का यही है कि आज हमारे टीचर वेल फील्ड माइंड तो है लेकिन वेल फॉर्म माइंड नहीं है। इसका कारण
इसका कारण ये है कि विश्व भर की 17% रिसर्च में भारत, जिसकी जनसंख्या 1,31 करोड़ है, वो भारत का कंट्रीब्यूशन मात्र 2.8% है। अगर विश्व भर की आबादी 8 अरब है, उसमें से 1,31 करोड़ सिर्फ हिंदुस्तान की आबादी है, तो ब्रेन कितना यूज हो रहा है हिंदुस्तान का उस 18% 17% में? सिर्फ 2.8%। रेडिकल्स। 1920 के बाद साइंस में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला सीवी रमन के बाद। रेडिकुलस। हमारा देश नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी जहां से जीरो आर्यभट्ट ने दिया और पूरी दुनिया की मैथमेटिक्स को सरल बना दिया, उस देश में कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं है। रेडिकुलस। हम अपने डेमोग्राफिक डिवीजन का किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हैं? व्हाई, हाउ? दो प्रकार के ब्रेन होते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, और मैं ये कहूंगा आने वाले समय में जिस ब्रेन की जरूरत है उसको हमें बनाने की जरूरत है। इसी कॉलेज से, इसी जगह से वो डेवलपमेंट में करने की आवश्यकता है। और मैं कहूंगा जो कॉलेज के मैनेजर और टीचर चाहेंगे बदलाव करना, मैं एग्जीक्यूट करके बेस्ट एजुकेशन कंपैरेटिव टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया आई विल प्रोवाइड यू। थ्रू दैट वी विल बी एबल टू डू द बेस्ट थिंग नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज के इंटरनेट के युग में पहले मैं अंतर समझाता हूं, वेल फील्ड माइंड और वेल फॉर्म माइंड होता क्या है। वेल फील्ड माइंड उसे कहते हैं जो वेल एजुकेटेड माइंड होता है, जिसमें हर इंफॉर्मेशन होती है। मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने ये पढ़ी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, आपके दिमाग में पढ़ लिया। दैट इज कॉल्ड द वेल फील्ड माइंड। सारी जानकारी आपके पास। क्या आज इसकी जरूरत है? आज वेल फॉर्म माइंड की जरूरत है। वेल फॉर्म माइंड क्या होता है? Which reacts on unknown things and come up with the new ideas। जो अनजानी चीजों के ऊपर रिएक्ट कर पाए दिमाग और नए आइडियाज के साथ आगे आ पाए, ऐसे दिमाग की जरूरत है आज इंटरनेट का युग है। जितना आप जिंदगी भर पढ़ेंगे उससे ज्यादा गूगल पे क्लिक मारेंगे, फटाक से आंसर आ जाएंगे। उससे ज्यादा एक रोबोट में डाला जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग चल रहा है और वहां पे एक रोबोट आपसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आज के दौर में हमें सिर्फ करेक्टर का एक मशीन नहीं बनना है, हमें नया करने की क्षमता पैदा करनी है। और वेल फॉर्म माइंड वही माइंड होता है जो अनजानी चीजों के साथ रिएक्ट करे और नई चीजों के साथ आगे आए। उसी माइंड को हम वेल फॉर्म माइंड कहते हैं। एक लड़का MBA करके, इंडियन एजुकेशन की बात मैं बताता हूँ, एक लड़का MBA करके दर दर भटकता है। हिंदुस्तान से 1 लाख बच्चे MBA परवर्स करते हैं, 20,000 को नौकरी मिलती है, 80,000 रोड पे टहलते हैं। 15 लाख बीटेक करते हैं, 3 लाख को नौकरी मिलती है, 12 लाख रोड पे टहलते हैं। Why this is happening? This is happening because they are not having the well formed mind, they are having well filled mind। और जो आज नई आइडियाज था, और मैं आपसे कहता हूं, एक व्यक्ति अगर नई खोज करता है तो उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उसी की खोज को पढ़ाया जाता है। आज अगर आप कुछ नया कर सके गवर्नमेंट आपको उठा देगी, आज अगर आप कुछ नया बना सके दुनिया आपको उठा देगी। लेकिन अगर हम पुरानी चीजें जो पहले हो चुकी हैं उसी को पढ़ के उसी में खेलते रहेंगे, then we are unable to contribute our anything for the future of state of India, and that was the very important thing। इसलिए यहाँ पे बहुत साफ तौर पे बताया गया है कि अगर हम लोग वेल फील्ड माइंड की बात करते हैं तो मैं फिर उसी चीज की बात करूंगा, वही नालंदा जिसने जीरो देके रोमन मैथमेटिकल को कितना इजी करने का काम किया था, नए आइडिया साथ आया था, क्योंकि उसने आर्यभट्ट ने दूसरों को फॉलो नहीं किया था, आर्यभट्ट ने जरूरत को समझा था और चीज को पैदा किया था। यही ब्रेन है, यही पावर है हमारी ह्यूमन ब्रेन की। हम नई चीजें कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, बस हमारी दिमाग को उस जगह यूज करने की जरूरत है। और मैं कहता हूं PhD का तात्पर्य कभी नहीं होता कि मैं लेक्चरर बन गया। समझिए, इसके डेफिनेशन को समझिए। PhD का तात्पर्य होता है कि आपके अंदर शोध करने की क्षमता पैदा हो गई। उस क्षमता का निरंतर उपयोग आप क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर हमारे अंदर शोध करने की क्षमता पैदा हो गई, we have to go consistently on it, we need not to just go on one time and after that we say मेरा तो रिसर्च हो चुका। तो फिर मैं कहूंगा कल जो बच्चे PhD करके निकल गए वो रिसर्च करके आपसे आगे निकल जाएंगे और आप सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में कैद रह जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। और मैं एक ऐसी टीम बनाना चाहता हूँ जौनपुर में जहाँ पे टीचरों का डिस्कशन होता रहे, कॉन्फ्रेंस होता रहे, नई नई चीजें डेवलप करते रहें। और जो भी हमारे 10 मॉडल कॉलेजेस होंगे उसमें वो सारी फैसिलिटीज जिसमें हमेशा डिस्कशन हो, क्योंकि चर्चा से ही नई चीज निकलती है। एंड इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी इंटेलेक्ट्स हैं हमारे सिटी में उनको इकट्ठा होकर एक
चर्चा नहीं करनी चाहिए प्रॉब्लम्स को लेके, तो नए सोल्यूशन हम खुद बना सकते हैं, हमें किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज ऑल द थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू से। और वेल फॉर्म माइंड की बात मैं करता हूं तो जैसे बिल गेट्स हुआ, स्टीव जॉब्स हुए, डिज्नी वर्ल्ड हुए, इन लोगों का क्या था? वेल फॉर्म माइंड था। दुनिया में आज जो भी बड़े लोग हुए, बिल गेट्स वही था जो हाई स्कूल में फेल हो गया था और उसने क्या किया? एक बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एस्टेब्लिश किया। स्टीव जॉब वही था जिसने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी, अनाथालय में पला और बाद में नौकरी के लिए जब एक आईबीएम कंपनी में गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में, वहां उसको ठोकर मार के निकाल दिया गया। कहा गया तेरे कंप्यूटर डिजाइन करके ले गया था, कार डब्बा लेके आए और नौकरी नहीं मिलेगी। वही स्टीव जॉब 2002 में ग्राफिक डिजाइनिंग करता है और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी क्रिएट कर देता है खड़कों की उनके सामने। डिज्नी वर्ल्ड वही शख्स है, हाई स्कूल का एक मासूम बच्चा एक न्यूज़पेपर में कार्टून के लिए जॉब मांगने गया था, कार्टूनिस्ट के लिए। उसके कार्टून को देखने के बाद उसको कहा गया तुम्हारे अंदर इमेजिनेटिव पावर नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। चर्च में झाड़ू लगाते हुए चूहे को कूदते हुए देखा था, उसने चूहे का फिगर आउट किया था और उसे हम मिकी माउस कहते हैं। उससे बड़ी पेंटिंग आज तक कोई कार्टून नहीं बना। ये है वेल फॉर्म माइंड का नतीजा। किसी के कहने से नहीं, अपनी क्षमता पे बिलीव रखने वाले इतिहास को बदलते हैं और जो किसी कहने पे चलते हैं वो जिंदगी में कुछ भी नहीं बदल पाते। So that is why I want to say that what people are thinking that is not your concern. What you are thinking is the main thing which will make a big change in the society. So at last on 7th topic I would like to say importance of mentor and guide in 21st century. आज हमारी लाइफ में मेंटर और गाइड की बहुत जरूरत है और मैं ये कहता हूँ, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, हमारा सिर्फ जौनपुर की प्रॉब्लम नहीं है ये। मैं आजमगढ़ गया, मैं इलाहाबाद गया, मैं कानपुर गया, मैं बनारस गया, मैं गाजियाबाद गया, आई हैव बीन टू एवरी प्लेस और हर जगह प्रॉब्लम सिमिलर, देयर इज नो डिफरेंट। और यही कारण होता है तैयारी करने के नाम पे 95% बच्चे अगर यहाँ से इलाहाबाद जाते हैं 100% तो 95 लोग आते हैं और बाकी जबरदस्ती बनना चाहते हैं। So I want to say this is the time that we have to think about ourselves. और इस पे आज मेंटर की जो बात हम करते हैं यहाँ पे डिफाइन किया गया, मेंटर आपका कोच हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, गाइड हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, ट्यूटर हो सकता है, कंसल्टेंट हो सकता है। और वो क्या करता है? जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उसको वो पूरी तरीके से हाईलाइट करता है। और एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा था, आई एम नॉट अ टीचर बट एन अवेकनर। टीचर का सबसे बड़ा रोल जो होता है वो जागरूक करना होता है, जगाना होता है, सही दिशा में बढ़ाना होता है। और सबसे ज्यादा जरूरी यही है, चाहे पर्सनल लाइफ की बात करिए, चाहे प्रोफेशनल लाइफ की बात कीजिए, आज की डेट में तो मैं कहता हूँ गुरुविहीन शिक्षा प्रणाली चल रही है हमारे हिंदुस्तान में। क्यों? पहले का समय अच्छा था। वाई? हाई स्कूल तक टीचर ने पढ़ाया, इंटर में दूसरे टीचर ने पढ़ाया, बीए हम तीसरे टीचर से किए, उसके बाद डिग्री लेके निकल गए। क्या कोई टीचर का ये रोल नहीं था उसकी जिंदगी को कैसे बनाया जाए दूसरे सिखाएं? कॉलेज के बाद भी एक लाइफ होती है, क्या ये टीचर को नहीं सोचना चाहिए कि ये डिग्री लेके जाएगा तो अपनी जिंदगी में करेगा क्या? दिस इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द टीचर्स एंड व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग दैट थिंग? इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और मैं ये कहना चाहूंगा आज की 21st सेंचुरी में मेंटर का होना बहुत जरूरी है। बच्चों को कुछ भी नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, वो जो देख रहे हैं उन्हीं भागते जा रहे हैं, गांव की सलाह से अपने करियर को चुनते हैं, वो भी ऐसे लोगों से जो हारे हुए हैं। हारा हुआ व्यक्ति हताशा देता है, जीता हुआ व्यक्ति जोश देता है और हमारे यहाँ जीते हुए लोगों की संख्या बहुत कम है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये ज्यादा जरूरी है कि हमें मेंटर का रोल अदा करना है कि बच्चों को उनके ऊपर मत छोड़िए। वो डिग्री लेके जब करते हैं ना, उनके पीछे कोई टीचर नहीं खड़ा रहता, वो कंपटीशन में जब हारते हैं कोई टीचर नहीं खड़ा रहता। एंड आई वांट टू से दैट ये हमें समझना होगा कि जिन युवाओं जिन बच्चों को आप पढ़ा रहे हो वो ही आपके भविष्य है। और एक मेंटर गुरु का सही कर्तव्य यही है, सही मार्गदर्शन देना, क्योंकि गुरु सहायक है, विद्यार्थी निर्णायक है। अगर हमारे गुरु निर्णायक बन जाएंगे तो विद्यार्थी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। द्रोणाचार्य अगर अपने अर्जुन को अपनी तरफ बनाना चाहते तो अर्जुन नहीं बन पाते। अर्जुन श्रेष्ठ इसलिए हुए क्योंकि द्रोणाचार्य ने सहायता की और उनके अंदर जो क्वालिटी थी उन्होंने डेवलप करके अपने आप को टॉप पे पहुंचाया। दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। और टीचर मेकर होता है, लाइफ मेकर होता है। एंड दैट इज व्हाई आई वांट टू से दैट इन टुडेस दिस वर्ल्ड वी आर हैविंग द मेजर प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेंटर्स की बहुत कमी हो गई है। हम जो पढ़ाते हैं उसको हमें देखना चाहिए कि
जीवन में इसका उपयोग कैसे है, हाउ दे आर एबल टू यूटिलाइज इट इन द लाइफ। और अगर हम अपनी ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जिसका उपयोग नहीं है, आज कॉलेज वगैरह का स्टैंडर्ड थोड़ा सा गिरा है, कोचिंगों में ज्यादा साइकिलें दिखती हैं, स्टूडेंट बीएससी करते समय बीएससी ना पढ़ के तैयारी करने बैठ जाता है, कहीं ना कहीं हम लोगों की गलती है क्योंकि हमको ठीक से गाइड नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग के कॉलेज में एक ऐसी व्यवस्था हो कि उनका टूटा हुआ विश्वास फिर से कॉलेज के प्रति आए, और कॉलेज जितनी जिम्मेदारी से बच्चों का जीवन बना सकता है वो प्राइवेट कोचिंग नहीं बना सकती। इसलिए इट वुड बी मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस दैट वी हैव टू मेक अप द एटमॉस्फेयर व्हिच विल सुटेबल फॉर द स्टूडेंट एंड दैट विल मेक देम सक्सेसफुल फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अब मैं यहाँ पे आखिरी टॉपिक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और मैं समझता हूँ there are some couple of things which I think I need to read over here. मैं अब उसी चीज की बात करूंगा जिस एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। और मेरी 2 बार यहाँ की पीसी से मुलाकात हुई है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, तीसरी बार हमारी मुलाकात होने वाली है, और मुझे लगता है ये मुलाकात काफी प्रोडक्टिव होगी। और मैं आप लोगों को भी कहूंगा, जागरूकता, ज्ञान और दूरदर्शिता, ये जब तक हमारे अंदर नहीं है तो हम अपने सिस्टम को कभी बदल नहीं सकते। सो हियर आई वांट टू से, इसके पहले मैं थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूं। ये हमारा सिस्टम जो है ना इंडिया का, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है, बहुत ही बेहतरीन स्टेप यूजीसी ने लिए हैं। मैंने टोटल रिसर्च किया यूजीसी पे, नेट पे, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है। हमें किसी स्किल इंडिया की जरूरत नहीं थी, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री ने कंप्रोमाइजेशन किया और क्या कहा, स्किल, स्केल एंड स्पीड। मतलब स्किल योग्यता, स्केल बड़े पैमाने पे, और स्पीड तेजी से। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ, when we talk about the skill, skill is also not that much of useful, just like education is not useful at present time. स्किल किसे कहते हैं? योग्यता। ड्राइविंग करनी भी एक स्किल है, घर बनाना भी एक स्किल है, बढ़ई का काम करना भी एक स्किल है। स्किल इंडिया प्रोग्राम लगभग 7 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके। What we have received? 2 व्यक्ति हैं, एक है शेफ, एक है कुक। अगर स्किल का डिफरेंस मैं बता रहा हूं, ह्यूमन ब्रेन स्किल के लिए नहीं बना है। आई वांट टू से चेंज योर परसेप्शन। आपके देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं आपको भी कहना चाहता हूं, बदलिए अपने परसेप्शन को। ह्यूमन ब्रेन किस लिए बना है इसको हमें समझना जरूरी है। हमारा दिमाग ज्यादा पावरफुल है। व्हाट इट इज? एक व्यक्ति अगर खाना बनाता है, कुक है, एक व्यक्ति अगर शेफ है, नई रेसिपी बनाता है, दोनों में अंतर जानते हैं? कुक जो है वो 5,000 कमाता है, शेफ जो है वो 5 लाख कमाता है। कैसे? एक व्यक्ति टेलर है, अगर वो 10,000 महीने का कमाता है, तो एक व्यक्ति जो फैशन डिजाइनर है वो 20 लाख रुपए महीने का कमाता है। कैसे? स्किल दोनों की बराबर है। वो भी खाना बनाता है, वो भी खाना बनाता है, वो भी कपड़े सिलता है, वो भी कपड़े सिलता है, लेकिन वो 5,000 कमाता है, वो 5 लाख कमाता है, वो 10,000 कमाता है, वो 20 लाख कमाता है। अंतर क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस। What it is? Creativity and intelligence. That is the real power of the human brain. So don't stop yourself on skill. Let's use your full potential and make yourself a creator. और यही चीज होती है कि जब कोई चीज नहीं क्रिएट करता है, उसकी सैलरी देखो, उसकी लाइफ देखो, उसकी सफलता देखो, वो 100 गुना ज्यादा होती है दूसरे व्यक्ति से। And that is why I want to say the skill. When we talk about the skill, it will be very important for us to understand. ना मैं चूंकि इस पड़ाव के लास्ट में मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूं, और ये क्या है, जो यूजीसी दिल्ली में बैठी है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिन्होंने बहुत अमेंडमेंट की है। हायर एजुकेशन की डेफिनेशन क्या देते हैं वो, और हायर एजुकेशन के बारे में बताते क्या है वो, उसको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करने की जरूरत क्या है। हायर एजुकेशन की डिफरेंट थिंग्स, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें कोई अपना शब्द नहीं ऐड कर रहा हूँ। आई एम सेइंग द एक्यूरेट थिंग। नेट क्यों बनाया गया था, क्या काम था नेट का, क्या जरूरत थी, IQAC, करोड़ों रुपए हमारी यूनिवर्सिटी में भी आते हैं
का क्या काम है, कैसे काम हो रहा है, क्या होना था और क्या हो रहा है। लेट अस टॉक अबाउट इट। हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, हायर एजुकेशन मींस डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। The pluralism of view is quite inevitable, and some would opine it should be like that only. As a teacher, a stakeholder of higher education area that is not just about higher level of educational structure in the country, there is more to it. In terms of level, higher education includes college, university, teaching, learning towards which student progress attain higher educational qualification. Higher education imparts, now बहुत ध्यान से सुनिएगा, higher education imparts in-depth knowledge, पहली चीज ध्यान से, in-depth knowledge and understanding as to advantage the students to new frontier of knowledge in different walk of life. It is about knowing more and more about less and less. It develops the student's ability to question and seek truth and make him her competent to critique on contemporary issue. It broadens the intellectual power of individual within a narrow specializations, but also give him her world perspective of world around. Education is the production of qualified human resource. Higher education is the production of qualified human resource. Higher education is seen as a process in which the students are counted as a product absorbed in the labor. Higher education as a training for research career. In the view, higher education is a preparation for qualified scientists and researchers who would continuously develop the frontier of knowledge. Quality within the viewpoint of more about research publication, transmission of academic rigor to qualify research. Now, I would like to say here core value of NET. और ये क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं पूछ रहा हूँ, मैं लेटर लिखने वाला हूँ नेट को, और मैं क्वेश्चन पूछने का एज इंडियन सिटीजन ये अधिकार है कि ये दिखावा है, ये रियलिस्टिक है। नेट जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसको बनाया गया था 1994 में, सितंबर 1994 में। काफी कमिटी पास की गई, काफी समय बिताया गया इस पे। इसके बाद इसका चयन किया गया कि नैक का निर्माण करते हैं जिससे क्वालिटी एजुकेशन ऑफ इंडिया विल इंप्रूव इंडेफिनेटली। इनकी कोर वैल्यू मैं बता देता हूँ, फिर मैं उसके बाद अपने लेक्चर पे वापस आता हूँ। और थोड़ा सा रियलाइज करने की जरूरत है, एजुकेशन सिस्टम जा रहा है, अरबों रुपए यूनिवर्सिटी में आ रहा है, प्राइवेट कॉलेज को फंड नहीं करेंगे, सरकारी में जो जाते हैं। अच्छा, दो प्रकार की प्रॉब्लम आती है। पहले तो टीचर ये कहते हैं कि मैं तो प्राइवेट हूँ, सैलरी कम है। मुझे समझ में आता है, चलो ठीक है भाई, बढ़िया करके लोग ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करके पढ़ाएंगे। दूसरा ये आता है कि जो सरकारी को तो और भी कह दूसरे, अगर 1.5 लाख मिल रहा है तो क्लास नहीं लेते। सही क्या है? व्हाट इज राइट? एक तो कहता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दूसरा बताता है हाँ फाइनेंस है कि चलो करते हैं, क्या पढ़ाने की जरूरत है। सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? लेट मी शो दिस थिंग मोर क्लियर। एक आखिरी चीज आप लोग की ध्यान से मैं सुनाना चाहूंगा, और ये वैल्यू क्लेम करती है इंडियन गवर्नमेंट, और खरबों रुपए जाते हैं देश के। आई एम सेइंग टू यू, खरबों रुपए जाते हैं इसके नाम पे। कोर वैल्यू ऑफ नेट। The Indian higher education system is a constant state of change and flux due to the increasing needs of expanding access to higher education, impact of technology on the delivery of education, increase of private participation, and impact of globalization. Taking cognizance of these developments and the role of higher education society, NAC has developed 5 core values. 5 core value NAC ने डेवलप की हुई। वो वैल्यू मुझे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में देखनी चाहिए थी, नहीं मिला। सिर्फ यहाँ की यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रॉब्लम है। आई एम सेइंग इट ओपनली। नाउ लेट मी क्लियर दिस। कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट 5 core वैल्यू है। इसमें पहला है कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट। मैं खास करके टीचर्स को एड्रेस कर रहा हूँ। राष्ट्र के निर्माण में
राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देना, ये तय करेगा नैक कि हमारे बच्चे राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। Most of the higher education institutions have a remarkable capacity to adapt to change and at the same time pursue the right goals and objectives they have set forth for themselves. Contributing to national development has always been a has always been a goal of India higher education, explicitly or implicitly. Higher education has a significant role in building on changes the advantage of the country and can contribute to national development. For example, by serving the cause of social justice, ensuring equity and increasing access to higher education, the higher education should respond to goal of national development and changing control. तो पहला नैक ये कहता है कि हायर एजुकेशन का जो सबसे बड़ा गोल होगा वो होगा नेशनल डेवलपमेंट का, वो होगा कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसको तय किया जाएगा नैक के द्वारा कि वो क्वालिटी हमारे कॉलेजेस से दी जा रही है, जो भी यूजीसी के द्वारा यूनिवर्सिटीज हैं और जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेजेस हैं, उनमें वो क्वालिटी दी जा रही है जिससे इस चीज को तय किया जा सके, ये नैक कहता है। फोस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज अमंग स्टूडेंट, दूसरी चीज, पहली नेशनल डेवलपमेंट, दूसरी नैक का ऑब्जेक्टिव है कि अपने इंडियन स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बनाना है। इसका 2 रुपए सरकार देती है, कॉलेजेस से बनाना है, हायर एजुकेशन से बनाना है। The development in the global scenario make it imperative for the NAC to include in its scope of assessment the development of skills students in India such that their skills are at par with those of their counterpart abroad. With liberalization and globalization, 1993 से इंडिया में आया था, अपनी इंडिया की आर्थिक व्यवस्था जब चौपट हो गई थी, तो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन इसका बहुत ही बूम हुआ था। और आज जब हमारे देश में हम एफडीआई की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये नैक कहता है कि लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, द नीड टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द हाई कैलिबर। जिस तरीके से हमारे देश में लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, जहां पे सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी कंट्री में हाई कैलिबर के स्टूडेंट्स को बनाने की, ध्यान दीजिएगा। And consequently, the demand of the higher education at nationally comparable, internationally acceptable standard, और बच्चों को इस तरह बनाना है कि नेशनल पे तो रहे ही, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे भी एक्सेप्टेबल हो। ये नैक के ऑब्जेक्टिव हैं जो पूरी इंडियन एजुकेशन, हायर एजुकेशन से ये कहते हैं। तीसरा है इनकलकेटिंग अ वैल्यू सिस्टम इन इंडिया। पहला हो गया राष्ट्र निर्माण, दूसरा हो गया अंतरराष्ट्रीय एक्सेसिबिलिटी, तीसरा हो गया वैल्यू, सिद्धांतों का निर्माण, जो बहुत अच्छी चीज है। उस पे कहते हैं स्किल आर नो वैल्यू इन द एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट वैल्यू सिस्टम। किसी भी योग्यता की कोई कीमत नहीं है जब तक व्यक्ति के अंदर नैतिकता ना हो। सही है। हायर एजुकेशन हैज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इनकलकेटिंग एंड डिजायरेबल वैल्यू सिस्टम इन द स्टूडेंट्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद द कल्चर डाइवर्सिटीज एंड डाइवर्सिटीज, इट इज एसेंशियल। अब इस पे इन्होंने बताया कि जहां इतनी डाइवर्सिटीज हैं, जहां पे इतने बदलाव हैं, वहां पे हमें हमारे हायर एजुकेशन में ऐसी नैतिकता देनी, और नैतिकता सबसे बड़ी होती है एजुकेशन की या हायर एजुकेशन की, होता है ट्रुथ एंड इटर्नल एस्पेक्ट। सत्य, हर जगह नैतिकता का सबसे बड़ा चीज होता है सत्य, ईमानदारी और ट्रुथ एस्पेक्ट, जो मैंने बताया। इसके बाद पांचवा इन्होंने लिखा प्रमोटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ये आपके नए का मानना है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल which was made in 1994, जहां पे ये एक सेपरेट बॉडी बनाई गई यूजीसी से, और जिसमें इसका वर्क है क्वालिटी इंप्रूव करना। इसका वर्क है जो मैंने पढ़ा, क्या वो वर्क आज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में दिख रहे हैं? अगर नहीं दिख रहे हैं, इससे बड़ा भ्रष्टाचार इस दुनिया में नहीं हो सकता। आई एम सेइंग। और डियर टीचर, मैं आपको कहता हूं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, वी हैव टू मेक द चेंज। आईक्यूएसी की बात करते हैं, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस है, ये ज्यादातर कॉलेजेस में होते भी हैं। आईक्यूएसी का मुझे पता है, मुझे ऑफर किया गया था, मैं प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोग्राम ले रहा था, और सबसे पहले तो मैं किसी कॉलेज में प्रोग्राम ले रहा था, तो मैंने इसी अवेयर मिशन के तहत प्रोग्राम लिया। तो वहां पे प्रिंसिपल ने कहा आईक्यूएसी के अंतर्गत करा देते। इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस है, एक लेक्चर का 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट देती है इसमें, 1 घंटे का। यू अंडरस्टैंड? एक्सटर्नल लेक्चर बुलाया जाता है, 1.5 लाख रुपया फिक्स है, नैक देता है। इन्होंने बैठा रखा है कॉलेजेस में, और आपको पता है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, आई वाज इंटरेक्टेड विद द पर्सन,
there in Purvanchal University, who is in charge of IQAC, whose responsibility is to maintain the standard of the organization inside the organization, to develop the activities, to make up the thing in a proper manner, to innovate the things in the universities. उससे बात करने के बाद मुझे क्या पता चला पता है? He himself don't know what is the standard of education. बहुत दुख है, बहुत पेन है, मुझे काफी पेन हुआ। जिसके हाथ में करोड़ों रुपए का इंचार्ज है, उसको खुद नहीं पता IQAC क्यों बनाया गया है। इसको बनाने का मेन उद्देश्य ही यही था, नैक ने जब इसको रखा कि IQAC के प्रोग्राम कराए, आजकल बहुत हो रहे हैं प्रोग्राम IQAC के। उसका मानना था हम इंटरनल स्टैंडर्ड को बढ़िया करेंगे कॉलेजेस के अंदर, लेकिन IQAC के नाम पे क्या हुआ? जिस एक प्रोग्राम का 1 लाख रुपया सैकड़ों हजारों कॉलेज, हजारों प्रोग्राम के अरबों अरब रुपए खर्च हो रहे हैं, और डेवलपमेंट क्या हो रहा है? ये सेल क्या कर रही है? We are unable to assure the quality and standard of education inside the universities. That is the problem. AICTE बनाया गया, ये सब क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए बनाई गई थी संस्थाएं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई, और आज की डेट में चेक करने की जरूरत है। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे शहर का ये है, मैं इस शहर की अब बात करता हूँ, हमारी आवाज उठती नहीं। यूनिवर्सिटी के पास जो आया है, क्या हमें अपने हक से नहीं मांगना चाहिए कि वो चीज हमारे यहाँ होनी चाहिए? आई एम सेइंग टू यू वेरी क्लियरली, क्या हमारे जौनपुर जनपद में कोई ऐसा है जो यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए और नैक में बात करे व्हाट इज गोइंग ऑन एट द ग्राउंड लेवल? Why we are able to provide the quality and the capability what we are talking about? हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम अपना प्रश्न नहीं रेज करते उन देश की बैठी हुई मेन संस्थानों से जिनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने लिखा है उनको डिलीवर करना। एंड दैट इज व्हाई मैं आप लोगों की सहायता से जौनपुर को मैं एक अपॉर्चुनिटी ऑफ लैंड बनाना चाहता हूँ, डेवलप करना चाहता हूँ, और इस तरह से डेवलप करना चाहता हूँ जहां से IAS भी कॉलेज से ही बना जाए और कॉर्पोरेट पीपल भी कॉलेज से ही बना जाए, कहीं भटकने की आवश्यकता ना हो। एंड वी विल मेक द प्लान फॉर द स्टूडेंट्स, वी मेक द प्रॉपर प्लानिंग फॉर एवरी सिंगल स्टूडेंट टू मेक द प्रॉपर डेवलपमेंट टुवर्ड द फ्यूचर कॉर्पोरेट। और अवेयरनेस ऐसी हो, मैं जौनपुर की संस्थानों को कॉर्पोरेट से डायरेक्ट जोड़ूंगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी से डायरेक्ट जोड़ूंगा, अंतरराष्ट्रीय लोगों से डायरेक्ट जोड़ूंगा। किसी के अंदर ये नहीं रहेगा कि हम जौनपुर के। That was the thing what is in my objective which I would like to do। और मैं एट लास्ट में 3 शब्द यहाँ पे बोलते हुए अपने सेमिनार को खत्म करूंगा, और वो जो 3 शब्द हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले थे कुछ दिन पहले, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ये शब्द बोला था नरेंद्र मोदी ने, आई थिंक 5 years ago at the foreign platform he has spoken, Davos, he has spoken that these 3 words, reform, perform and transform। My dear friends, I want to say, reform करते हैं सुधार को, परफॉर्म करते हैं प्रदर्शन को, और ट्रांसफॉर्म करते हैं बदलाव को। याद रखिएगा, ये 3 शब्द आपको भी याद रखने चाहिए। सुधार पे जब काम होगा तभी तो बदलाव होगा। Am I right? The Prime Minister has spoken that reform, perform, transform। मैं हर कॉलेज के मैनेजर से और लोगों से इल्तिजा करूंगा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की ऑब्जेक्टिव पे हम वर्क करें, क्योंकि बदलाव तभी होंगे when we go through these 3 aspects। and I want to say that we can do everything from here, nothing is impossible। the main thing is that how we are going to approach the thing, how we are going to perform the thing, and place never makes the difference। don't think कि जौनपुर में होगा तो बहुत अच्छा होगा, don't think इलाहाबाद में होगा तो बहुत अच्छा होगा, don't think कहीं दिल्ली में बैठ के होगा तो बहुत अच्छा होगा। I want to say, जब आप कहते हो मेरे पास इंटरनेट की ताकत है, तो मैं आपको कहता हूँ पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। आप अपनी बुद्धि का यूटिलाइजेशन करो, और ये फर्क नहीं पड़ता मैं जौनपुर में हूँ, मैं कहाँ पे हूँ। मेन चीज ये है आप करना क्या चाहते हो और किस तरीके से यूटिलाइजेशन करोगे। आप बहुत नया कर सकते हो, आप बहुत बड़ा कर सकते हो। You will make a big change for this whole world, and I want to say that जगह बदलने से सफलता नहीं बदलती, सफलता मिलती है तो
सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच और दिमाग बदलने से, एंड दैट इज द थिंग व्हाट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड। एक छोटे से जमीन से आप बहुत बड़े काम कर सकते हो। नेवर थिंक नेगेटिव, थिंक पॉजिटिव, एंड द इन्फॉर्मेशन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट आर मच रिक्वायर्ड इन आवर एजुकेशन सिस्टम, एंड वी आर गोइंग टू दैट, वी विल डेफिनेटली एबल टू मेक अ बिग चेंज, एंड वी विल बी एबल टू मेक आवरसेल्व्स एट द base where we will be able to make a very, very strong and effective work, and you can say that will make a big change for the future prospect of India, and that is why मेरा आने वाले 4 साल में इसी उद्देश्य के साथ मैं जौनपुर की धरती पे खड़ा हूँ। आने वाले 4 साल में मैं यहाँ के इंस्टीट्यूशन को इतना मजबूत करना चाहता हूँ कि यहाँ के इंस्टीट्यूशंस अगल बगल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से इवन इंडिया के डेवलपमेंट में अपना बेहतर कॉन्ट्रीब्यूशन करें। मैं मेरे साथ 54 देश के 54 लेक्चरर, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस सिटी, और मैं कहूँगा हर टीचर, हर प्रोफेसर, योग्यता में मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए सबका सीखना बहुत जरूरी है। With these all words, I would like to use up my presentation. Thank you very much. Thanks, Mr. Prabhakar Singh, and thanks all of you participants, respected Madam, Inter College Principal Sir, and सभी हमारे विद्वान टीचर। कुछ मुख्य बातों को आपने इंडिकेट किया, बड़ा अच्छा लगा कि 21वीं सदी में वैश्विक रूप से एजुकेशन एक चैलेंज है। आप इनकी बातों को बोलूंगा। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि 21वीं सदी का अनपढ़ वह है जो सीख नहीं सकता। करेक्ट, सब कुछ जानते हैं, सर्टिफिकेट इतने हैं जो सर से लेकर नाखून तक कर देंगे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हम सीख नहीं सकते। हमारे अंदर सीखने की ललक नहीं है, हमारे अंदर जो अहंकार है, ईगो है कि आई एम परफेक्ट, मैंने पढ़ लिया, आई एम टीचर। मैं उस दिन भी इस बात को बोला था, ध्यान होना चाहिए कि हम बच्चों को कहते हैं होमवर्क नहीं किया। टीचर कितने होमवर्क करके आते हैं, अपने दिल पर हाथ रख के रखें कि कौन टीचर है, कितने घंटे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए होमवर्क करके आते हैं कि मैं आज क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। मेरा प्रश्न जरा चुटकुला है, लेकिन गौर करिएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो 1 घंटे 2 घंटे खुद होमवर्क करके आते हैं कि हम बच्चों को अच्छा परफॉर्म करें। सॉफ्ट स्किल वेरी मस्ट। अगर सॉफ्ट स्किल नहीं है तो हम इस पढ़े लिखे अपाहिज विकास नहीं कर सकते। आगे आपने कहा था कि जो प्राचीनता है और जो मॉडर्न है, नवीनता है, दोनों का समावेश आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हम प्राचीन को तिरस्कृत कर दे रहे हैं। प्राचीनता के साथ हम जो नवीन अवधारणा है, जो हमारे नए सोच है, नई खोज है, उनको भी
स्वीकार करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। पेडागॉजी करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग, मोस्टली स्टूडेंट जानते होंगे, आपको ये बताया गया है। और लास्ट चैप्टर 6 में आपने जो कहा था क्रिटिकल थिंकिंग, सोच जो व्यक्ति को महान बनाए। प्रॉब्लम, हम समस्याओं का निदान कैसे करें? हम लोग ब्लैक बोर्ड पर समस्याओं का निदान करते हैं, तो उसी प्रकार से बच्चों की समस्याओं का कैसे निदान करें, ये हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। लीडर का गुण, हर छात्र में नेतृत्व का गुण पैदा करना है। नेतृत्व का गुण तभी पैदा होगा जब हमारे अंदर लीडरशिप का गुण रहेगा, हम आगे बढ़ेंगे। जो हेजिटेशन है, हिचकिचाहट है, अभी आपने कहा कि मैं जानता बहुत कुछ हूँ लेकिन बोलना पड़ता है, तो जो हमारे अंदर एक हेजिटेशन है, हम प्रेजेंटेशन अपना नहीं दे पाते, हम प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाते। बहुत से बच्चे हैं, उनको प्रेयर में बुलाइए या कभी बुलाइए तो वो पीछे रहते हैं। क्यों? वो हेजिटेशन जो आपके अंदर है। ऐसा नहीं वही बुक आप भी पढ़ रहे हैं, वही टीचर आपको भी पढ़ा रहे हैं, बट जो हमारे अंदर वो हेजिटेशन है उसको निकालना होगा। जब तक आपका हेजिटेशन नहीं निकलेगा आप कुछ नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी क्या मैं सीधा बता दूं आपको, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द क्वालिटी। बेसिकली क्वालिटी वर्ड 1940 से डेवलप हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से निकला हुआ ये शब्द है क्वालिटी। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एजुकेशन में जब हम क्वालिटी बात करते हैं तो एक इसका छोटा सा अंश है जो हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना होगा, फिटनेस फॉर पर्पस। क्वालिटी क्या है? फिटनेस फॉर पर्पस। कोई भी आपका उद्देश्य है, ठीक है, उसको लेके आपकी फिटनेस, वही आपकी क्वालिटी। ओके, ये छोटी सी चीज थी जो मैं आपको बताना चाहता था, व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, आप जब सोचते हो मैं आईएएस बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, क्या आप फिट हो? दैट इज द परफेक्ट। एंड क्वालिटी इज समथिंग दैट इज फिटनेस फॉर पर्पस। कीप इन योर माइंड, गो थ्रू इट, यू विल बी एबल टू मेक द चेंज। थैंक यू। ये कॉलेज का स्मृति चिन्ह आपको प्रदान किया जा रहा है, ठीक है? जोरदार तालियां। आपको आपने बहुत कुछ बताया, एक बार आप हाथों का धन्यवाद, ताली बजा। करेंगे आपसे कि एक बार और आप आ जाए यहाँ पर। सम्मान प्रदान करते हुए बीएड विभाग के एचओडी डॉक्टर एनपी उपाध्याय जी। बच्चों बिग हैंड। आपसे भी